Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss molecular orbital theory. Its short name is MOT. So what is molecular orbital theory? So listen, this is the next topic of chemical bonding and listen, this is the last theory of bonding. So what is molecular orbital theory? Now we will discuss it. So listen, this theory was given by Hunds and Mulliken after valence bond theory. It means इस थ्योरी को हुंड्स और मुलिंकन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद दिया था. एंड लिसन, देयर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. यहां पर कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा इस थ्योरी के. एंड लिसन, दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी, सो लिसन वेरी केयरफुली. लिसन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, linear combination of atomic orbital forms molecular orbital. It means जब दो या दो से ज्यादा atomic orbitals, for example we can understood it from here, when two atomic orbital linearly combine, it means जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर वे में कंबाइन करते हैं. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. शॉर्टली इट इज कॉल्ड एज LCAO. सो लिसन, व्हाट इज LCAO? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल forms molecular orbital. It means लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये क्या बनाता है? इट फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इट मीन्स व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, or we can say in simple language, LCAO forms molecular orbital. It means जो molecular orbital theory MOT है वो है क्या? What is this? This is LCAO, means linear combination of atomic orbital. So simply we can understood what is linear combination of atomic orbital. You can see here. So listen, there are two atomic orbital. A dot O means atomic orbital. So there are two atomic orbital. And listen, when they linearly combine, जब ये दोनों linearly combine करते हैं, then listen, they will form two new orbitals that are called as molecular orbital. तब उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. दिस इज वन ऑर्बिटल एंड दिस इज सेकेंड ऑर्बिटल. इट मीन्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. सो लिसन, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज ओके. नाउ वी कम ऑन सेकेंड पॉइंट. नाउ वी मूव ऑन सेकेंड पॉइंट. व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? लिसन, molecular orbital is of two type. It means molecular orbital हमारा दो तरह का होता है. First one is bonding molecular orbital and second one is anti-bonding molecular orbital. It means जो molecular orbital है वो दो तरह का होगा. First one is bonding molecular orbital which is also called as BMO. Bonding molecular orbital. Shortly it is called as BMO, bonding molecular orbital. And second molecular orbital is anti-bonding molecular orbital. It is called as ABMO. ABMO means
anti-bonding molecular orbital. So listen, we can easily understood by these two type of molecular orbital from this example. It means हम एक एग्जाम्पल लेकर या इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से मॉलिकुलर ऑर्बिटल के टाइप्स को समझ सकते हैं. सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हमने देखा H2 मॉलिक्यूल जो है इसमें जो बॉन्डिंग होती है, अभी तक हम इसे कोवैलेंट बॉन्डिंग जानते थे, बट और वो भी किसके अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस VBT के अकॉर्डिंग इट इज कोवैलेंट बॉन्ड. बट नाउ वी विल डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन H2 मॉलिक्यूल. अब हम डिस्कस करेंगे H2 मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या मीनिंग है, क्या सेंस है. सो लिसन, वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ H2 molecule, how many hydrogen atoms are there? There are 2 hydrogen atoms. It means H2 molecule में 2 hydrogen atoms हैं. This is first hydrogen atom. This is second hydrogen atom. What is the electronic configuration of first hydrogen atom? According to Abau's rule. Abau रूल के अनुसार जो पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू Abau रूल इट विल बी 1s1. It will be 1s1. So similarly, the electronic configuration of second hydrogen atom, it will also be 1s1. तो हमने पहले हाइड्रोजन एटम को लेफ्ट साइड लिख लिया और दूसरे हाइड्रोजन एटम को राइट साइड लिख लिया. नाउ लिसन, वी ऑल नो दैट दिस इज 1s सबसेल. This is 1s subcell. 1s subcell contain how many s orbital? 1s subcell contain 1s orbital. How many electrons are there? 1 electron is there. Now for second hydrogen atom, we can say similarly 1s subcell contain 1s orbital. This 1s orbital contain how many electron? 1 electron. So listen, these s orbital are called as atomic orbital. It means जो Abau रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनमें जो सबसेल होती हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा s सबसेल में एक s ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं और f में 14 f ऑर्बिटल्स होते हैं. सो दीज आर सबसेल्स एंड दीज आर ऑर्बिटल्स. तो ये जो ऑर्बिटल्स हम देखते हैं किसी सबसेल में, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल. तो यही ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इट मींस दिस इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी s एटॉमिक ऑर्बिटल है. So according to molecular orbital theory, when atomic orbital are linearly combined, then they will form molecular orbitals. It means जितने, एक पॉइंट अभी ये भी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं. जैसे कि हम लोग पढ़ते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, द नंबर ऑफ combining orbitals in hybridization, it is equal to total number of hybrid orbital. वहां पर जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते थे उतने ही नए इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे. बट यहां पर MOT में भी वही केस है. लिसन, यहां भी क्या है, एटॉमिक नंबर, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उतने ही नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे.
So for example, this 1s is what? It is atomic orbital. This 1s is what? It is also atomic orbital. It means when these two atomic orbital combine together, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, some like this manner, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, then they will form equal number of new orbitals which are called as molecular orbital. तब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी the below orbital is called as BMO, means bonding molecular orbital, and above orbital is called as ABMO. आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको कहा था कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो हम इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ सकते हैं. सो लिसन, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर, then they will form equal number of molecular orbital. And listen, one molecular orbital will be called as BMO, which has lower energy. It means जो BMO है उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी एनर्जी कम होती है. किससे? इसकी एनर्जी कम है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है. किससे? ABMO से. इट मीन्स हम कह सकते हैं when we move from bottom to top, it means जब हम नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे या नीचे से ऊपर की ओर जब हम मूव करते हैं, then listen, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेज. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है. सो लिसन, you can understood it from this arrow. So listen, what is this? When two atomic orbital combine with each other, then they will form equal number of molecular orbitals. Listen, one molecular orbital will be called as BMO, which has less energy. And listen, other molecular orbital is called as ABMO, which has higher energy. Listen, BMO is represented by sigma 1s. BMO को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? sigma 1s से. It is represented by sigma 1s. And ABMO is represented by sigma 1s star. इट मीन जितने भी स्टार वाले ऑर्बिटल होते हैं वो सभी एंटी बॉन्डिंग होते हैं. लिसन, ABMO is एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड लिसन, BMO is बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इट इज sigma 1s and ABMO is sigma 1s star. इट मीन्स हमने देखा सेकेंड पॉइंट में, लिसन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज BMO, which is sigma 1s here in case of H2 molecule, and second anti-bonding molecular orbital, that is ABMO, which is sigma 1s star in case of H2 molecule. Now third point we will discuss. अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे. BMO हैज लेस एनर्जी देन ABMO. इट मीन्स जो BMO की एनर्जी होती है वो ABMO से कम होती है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है तो BMO की एनर्जी कम होगी और ABMO की एनर्जी ज्यादा होगी. एंड लिसन, बट, लेकिन आप और क्या देख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ BMO
is less than the energy of atomic orbitals that are combining. It means जो BMO की एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से भी क्या है, कम है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं. एंड लिसन, द एनर्जी ऑफ ABMO it is greater than the energy of atomic orbitals that are combining. It means जो ABMO है उसकी जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं. नाउ लिसन, यू कैन अंडरस्टूड द एनर्जी फ्रॉम दिस एरो. तो BMO की एनर्जी कम होती है ABMO से, या हम ये भी कह सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, BMO की एनर्जी इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है क्योंकि BMO का ऑर्बिटल नीचे प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर प्रेजेंट है. और हम क्या बता सकते हैं कि जो ABMO की एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है. सो लिसन, these are the main points of molecular orbital theory. Now we will discuss, listen, next point, fourth point is atomic orbital are monocentric. It means जो atomic orbital होते हैं उनमें केवल एक सेंटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1s atomic orbital. 1s atomic orbital जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा, उसका एक ही सेंटर होगा. दिस इज ऑल्सो 1s atomic orbital. बट लिसन, दिस इज BMO. इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी पॉलीसेंट्रिक. एंड लिसन, second molecular orbital obtained which will be called as ABMO. It will also be polycentric. It means जो BMO है वो मोनोसेंट्रिक होते हैं और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दैट इज BMO and ABMO that will be polycentric. It means atomic orbitals are monocentric while molecular orbitals are polycentric. Atomic orbital में केवल एक सेंटर होता है ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन जो BMO और ABMO हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक से ज्यादा सेंटर होते हैं. Now we will discuss the next point of molecular orbital theory. So listen, atomic orbitals are monocentric and molecular orbitals are polycentric in nature. So listen, जो atomic orbital हैं वो monocentric होते हैं और molecular orbital polycentric होते हैं. We have discussed, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. Now we will discuss fifth point. Listen. Before explaining fifth point, I will explain molecular orbital diagram. It means fifth point को explain करने से पहले मैं आपको molecular orbital diagram बताऊंगा. सबसे पहले for greater than 14 electron system. It means किसके लिए, for ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रेटर देन 14. इट मीन्स जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल O2. हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8. देयर आर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल. O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 2. So total number of electron in O2 molecule it will be 2 into 8 and it will be 16. It means ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इसका मतलब
ये ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ सकता है। सिमिलरली और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? O2 माइनस, O2 माइनस मीन्स O2 means 16 electron, minus means 1 electron is extra electron, so total electrons will be 17 electron. It means there will be 17 electron in O2 minus. This is O2 minus ion, molecular ion. Now O2 2 minus. So listen, how many electron present in O2 2 minus ion? It will be 16 electron in O2 plus 2 minus means there will be 2 extra electron. So listen, total electrons will be 18 electron. हमें पता है माइनस किसी पर तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा तो Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पर भी हम समझ सकते हैं जितना माइनस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है अपने न्यूट्रल एटम से। सो लिसन हियर 2 माइनस मीन्स हमको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट मीन्स वी कैन से O2 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसका मतलब ये तीनों ही एग्जाम्पल ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल। इट मीन्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे O2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। So listen, we all know that in case of O2 molecule there are 2 oxygen atoms. O2 molecule में 2 oxygen atoms हैं। So listen, so the electronic configuration of first oxygen according to above it will be 1s2 2s2 2p4 because its atomic number is 8. Similarly for second oxygen atom 1s2 2s2 2p4 it means 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अबाव रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने पहले ऑक्सीजन एटम को O2 मॉलिक्यूल के पहले ऑक्सीजन एटम को लेफ्ट साइड में लिख दिया और O2 मॉलिक्यूल के दूसरे ऑक्सीजन एटम को राइट साइड में लिख दिया। नाउ we will take first atomic orbital of first oxygen and first atomic orbital of second oxygen atom। अब हम दोनों के पहले पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, जैसा अभी हमने H2 मॉलिक्यूल के लिए किया हुआ था। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इसका और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हम लेते हैं। सो वी ऑल नो दैट सबसे पहले ऑक्सीजन के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? पहले का 1s और दूसरे का 1s। सो वी ऑल नो दैट दिस इज 1s, दिस इज ऑल्सो 1s। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उतने ही क्या बनते हैं? नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से एक होता है BMO जिसकी एनर्जी कम होती है और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो होता है ABMO। इट मीन्स वी कैन से द एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर आने पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। नाउ वी विल टेक सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम ऑक्सीजन एटम का सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे जो कि क्या है? 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। सो लिसन, नाउ सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज 2s एटॉमिक ऑर्बिटल।
तो हमने 2s एटॉमिक ऑर्बिटल पहले ऑक्सीजन का और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन एटम का लिया। इनको कंबाइन करने के बाद हमको उतने ही नए क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। सम लाइक दिस, this is 2s atomic orbital of first oxygen, this is 2s atomic orbital of second oxygen. Now listen, अब हमारे पास बचा कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटम में 2p, पहले का 2p और दूसरे का 2p। 2s को हम पहले ही कंबाइन कर चुके हैं 2s के साथ। इट मीन्स 1s कंबाइन होता है 1s के साथ, 2s कंबाइन होता है 2s के साथ, 2p कंबाइन होता है 2p के साथ। सो लिसन, अब बात आती है 2p। तो 2p सबसेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह दूसरे 2p सबसेल में भी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, देयर विल आल्सो बी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ इट मीन्स इस बार 3 p ऑर्बिटल यहां पर पहले ऑक्सीजन के 3 p ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन के 3 p ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ध्यान से हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। सो लिसन, इट मीन्स डायग्राम विल बी सम लाइक दिस। डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, इसको मैं और क्लियर कर दे रहा हूं। ये 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो यहां कुछ इस तरह होगा। लिसन, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, second oxygen atom 1s2 2s2 2p4. Now 1s of first and 1s of second atomic orbital, पहले ऑक्सीजन एटम के और दूसरे ऑक्सीजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें से एक क्या होगा, BMO होगा और दूसरा क्या होगा, ABMO होगा। पहले को हमने बताया था रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s से और दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s स्टार से। किससे, सिग्मा 1s स्टार से। बिकॉज ये भी 1s से मिलके बन रहे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ 2s atomic orbital of first oxygen atom and 2s atomic orbital of second oxygen atom। हमें पता है 2s सबसेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो यहां पर भी उतने ही वैसे ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा सिग्मा 2s जो कि BMO होगा और दूसरा होगा सिग्मा 2s स्टार। अब क्या बचा हमारे पास, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल पहले ऑक्सीजन एटम का और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन एटम का, दोनों ही क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और हमें पता है
2p सबसेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले ऑक्सीजन में भी 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और ये कंबाइन करने के बाद इक्वल नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इट मीन्स 3 + 3 मीन्स 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, और 6 में से आधे बनते हैं बॉन्डिंग मीन्स बीएमओ। इस लाइन के नीचे वाले 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं? बीएमओ। इट मीन्स इनमें स्टार नहीं होगा, और इस लाइन के डॉटेड लाइन के ऊपर वाले जो 3 ऑर्बिटल होते हैं दैट इज एबीएमओ। इट मीन्स इनमें स्टार होता है। नाउ लिसन, this is 2p atomic orbital of oxygen. This is also 2p atomic orbital of second oxygen atom. So listen, we can say in the left side atomic orbital, in the right corner atomic orbital, but in the middle there will be molecular orbital. It means जो लेफ्ट साइड में ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, राइट कॉर्नर पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जो मिडिल वाले ऑर्बिटल बन रहे हैं नए, वो सभी क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। नाउ लिसन, सो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इट मीन्स जो ऑर्बिटल की एनर्जी है किसके लिए? ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वो क्या हो रही है? नीचे से ऊपर बढ़ रही है। बट इससे पहले हम आपको इन ऑर्बिटल्स के नेम बता देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा 2pz। इस ऑर्बिटल को सिग्मा 2pz कहते हैं, और इसी के एंटी बॉन्डिंग को कहते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट, सबसे नीचे सबसे ऊपर। इट मीन्स दिस इज सिग्मा 2pz स्टार। दिस इज पाई 2px। ये पाई 2px है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहां होगा। इट मीन्स दिस विल बी पाई 2px स्टार। नाउ दिस इज पाई 2py। ये ऑर्बिटल पाई 2py होगा, तो ये वाला क्या होगा? पाई 2py स्टार। सो लिसन, अब हम आते हैं 5th पॉइंट पर। जब हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ जाएगा तभी हम 5th पॉइंट को समझ सकते थे। सो लिसन, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझाया। सो लिसन, नाउ यू कैन राइट, अब आप लिख सकते हैं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या एनर्जी है? यू कैन राइट, सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। आप फिगर में भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की। फिर किसकी एनर्जी आएगी? सिग्मा 1s स्टार। देन सिग्मा 2s की आएगी, देन सिग्मा 2s स्टार, देन सिग्मा 2pz। उसके बाद आएगी एनर्जी सिग्मा 2pz की। उसके बाद आएगा, आप देख सकते हैं ये दोनों ऑर्बिटल एक ही लेवल में है। इट मीन्स दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। इट मीन्स पाई 2px की एनर्जी और पाई 2py की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार की एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये दोनों भी एक ही लेवल में है। और सिग्मा 2pz स्टार की जो एनर्जी है ये क्या होगी? इट विल बी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
Now listen. This is the case of greater than 14 electron system. Now we will discuss the next case, less than 14 electron system. I hope you have noted it. I am roughing it. So listen. What is the case of less than 14 electron system? तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग. लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता क्या है, यहां केवल एक चेंज ये होता है. पहले तो हम देखते हैं लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या. लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मींस ऐसा सिस्टम जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल B2C2N2. B2C2N2. B2 means 10 electron, C2 means 12 electron, N2 means 14 electron. This is less than equal to 14 electron system. ये तीनों ही एग्जाम्पल किसमें आएंगे, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में. इसमें केवल एक चेंज ये आता है कि जो सिग्मा 2pz है वो इन 4 ऑर्बिटल्स के बीच में चला जाता है. इट मीन्स ये ऑर्बिटल यहां आ जाएगा, ये ऑर्बिटल उठ के यहां आ जाता है. तो होगा क्या, ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. नाउ वी विल राइट, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी विल राइट सेकेंड केस फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So for example, B2C2N2. Now listen. Energy, the order of energy will be sigma 1s की एनर्जी, बाकी सब सेम रहेगा. सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, देन सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s स्टार. लेकिन अब यहां सिग्मा 2pz नहीं आएगा पहले की तरह. अब पहले कौन से दो ऑर्बिटल आएंगे, पाई 2px और पाई 2py. क्योंकि हमने बताया ये जो सिग्मा 2pz है ये कहां मूव कर जाता है, ये इन 4 ऑर्बिटल्स के बीच में आ जाएगा. इट मींस मैं आपको बना के दिखा देता हूं. लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होगा क्या, जो सिग्मा 2pz है, ये सिग्मा 2pz ये कहां आ जाएगा, इट विल कम इन बिटवीन दीज 4 पाई ऑर्बिटल. इट मींस जो सिग्मा 2pz था वो कहां आ गया, आप देख सकते हैं, वो इन 4 पाई ऑर्बिटल के बीच में आ गया. और ये कौन सा ऑर्बिटल था, दिस ऑर्बिटल वाज पाई 2px एंड दिस ऑर्बिटल वाज पाई 2py. सो लिसन, दिस विल बी सिग्मा 2s स्टार के बाद किसकी एनर्जी आएगी, पाई 2px और पाई 2py की. So this theory is very important for competitive exam also. एंड देन एनर्जी किसकी आएगी, सिग्मा 2pz की, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है. तो अब आएगा सिग्मा 2pz. फिर क्या आएगा, पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. नाउ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2pz स्टार की, क्योंकि वहां कोई भी चेंज नहीं हुआ. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. और ये किसके लिए है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसके लिए है, इट इज फॉर
less than and equal to 14 electron system. So correct it. Now listen. Filling of electron in the orbital is according to above rule. It means अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 6. Filling of electron in molecular orbital is done by according to above rule. So we can write filling of electron in molecular orbital is done by according to above rule. Above rule means in the increasing order of energy of orbitals. It means above rule क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सबसेल की तरफ होती थी. वैसे ही यहाँ पर above रूल लगाने पर हम क्या कहेंगे? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भरेंगे, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अलग एनर्जी का ऑर्डर होता है और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अलग एनर्जी का ऑर्डर होता है. इस बात को हम जरूर ध्यान में रखेंगे. सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल 1s2 था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ. इट मीन्स ऑक्सीजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ऑक्सीजन के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे. तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए. बट अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को इन 2 ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है. तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? हायर एनर्जी में. इसका मतलब यहाँ पर अबाव रूल फॉलो कर रहा है. और साथ में अभी एक जगह हुन्स रूल भी आता है, वो भी मैं आपको बताता हूं. सिमिलरली 2s2 यहाँ पर 2s2 यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. अब 4 इलेक्ट्रॉन को 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा. अब आता है 2p4 की बारी. इट मीन्स यहाँ 2p4 मीन्स 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4. सिमिलरली हेयर 1 2 3 4. बट यहां पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2p में है, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन 2p में है. इट मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें 6 वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है. तो 6 वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कौन सा सिस्टम हमें दिया है? अगर ये हमें दिया है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हमको पता है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मा 2pz नीचे होता है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा लोअर एनर्जी लेवल में. हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस ऑर्बिटल में. अब इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल p3. तो p3 में होगा क्या? 3 ऑर्बिटल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह भरे जाते हैं एक एक करके. तो सिमिलरली यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसलिए यहां पर लगाएंगे हुन्स रूल. तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे, 2 आप भर चुके हैं, तीसरा यहां आ गया, चौथा यहां आएगा. अब जब दोनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे तो हम पहले ऑर्बिटल पे फिर आ जाएंगे अगला इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में अगला इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं. यहां भी हुन्स रूल लगाएंगे क्योंकि यहां भी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है. इट मीन्स दिस इज 7th इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 8th इलेक्ट्रॉन.
इट मीन्स यहाँ हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे और हमने 8 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भर लिया है। तो यहाँ पर हुन्स रूल भी लग रहा है सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, और अबाव रूल भी लग रहा है क्योंकि यहाँ जो सिग्मा 2pz था उसकी एनर्जी क्या है, कम है, पाई 2px और पाई 2py से, इसलिए यहाँ अबाव रूल भी लग रहा है और हुन्स रूल भी लग रहा है। सो लिसन, दिस इज द filling of electron in molecular orbital. This is the filling of electron in molecular orbital. Now, what is the application of MOT? अब हम लोग डिस्कस करेंगे MOT की एप्लीकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। MOT की एप्लीकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिसन, एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर होम एग्जामिनेशन। होम एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ MOT. So first one is in the calculation of bond order. In the calculation of बॉन्ड ऑर्डर, ये कैसे निकालते हैं ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड, इन द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, इट मीन सब्सटेंस हमारा किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। थर्ड एप्लीकेशन, in the determination of bond length and bond energy. So listen, higher will be the bond order, higher will be the bond energy. इट मीन्स जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना अच्छे से होगा। एंड लिसन, इट मीन्स उस बॉन्ड को बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी। इट मीन्स बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बट बॉन्ड मजबूत होगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। बिकॉज एटम्स, बॉन्डेड एटम्स are very close with each other. So bond order is directly proportional to bond energy, but it is inversely proportional to bond length. So all these are the main points of MOT. I hope you understood it very well. Thank you.